بلیٹن کا آغاز کریں گے آج کی سب سے اہم خبر سے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پنجاب حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ۔ حکومت نے کورونا کے مریضوں کو سیلف آئسولیشن کی اجازت دے دی ہے۔ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی سفارشات پر باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے کورونا مریضوں کو ہوم آئسولیشن کی اجازت دے دی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی سفارشات پر باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق صرف معمولی علامات والے مریضوں کو ہی ہوم آئسولیشن میں رکھا جا سکے گا۔ مریض کو متعلقہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی نگرانی میں ہوٹلز، اسکول بلڈنگز، مساجد، ہاسٹلز، کمیونٹی سینٹرز اور ضروری سہولیات سے مزین عمارت میں رکھا جا سکے گا۔ ہوم آئسولیشن والی عمارت کو روزانہ ڈس انفیکٹر اور سالڈ ویسٹ کو گائیڈ لائن کے مطابق تلف کیا جائے گا۔ کسی ایسی عمارت میں ہوم آئسولیشن کی اجازت نہیں ہوگی جہاں کولنگ اور ہیٹنگ سسٹم سے وائرس پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ مریض کو صرف ڈسپوزیبل برتنوں میں ہی کھانا مہیا کیا جائے گا۔ ہوم آئسولیشن کا فیصلہ ڈپٹی کمشنر کی نامزد کردہ ہوم آئسولیشن کمیٹی دے گی۔ کمیٹی میں اسسٹنٹ کمشنر یا ان کا نمائندہ، DDO ہیلتھ اور چیف آفیسر شامل ہوں گے۔ پاپولیشن ویلفیئر، لائف اسٹاک، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اہلکار ہوم آئسولیشن کی مانیٹرنگ اور رپورٹنگ کریں گے۔ اربن یونین کونسل میں 3 کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ ہر کمیٹی میں 1 ڈاکٹر شامل ہوگا۔ کمیٹی خاندان کے افراد کی تعداد کے مطابق 1 سے زیادہ مریضوں کو رکھنے کی گنجائش کا بھی جائزہ لے گی۔ ہوم آئسولیشن کی اجازت سے پہلے متعلقہ خاندان کو طریقہ کار اور SOP سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ ہوم آئسولیشن میں موجود مریض اپنی کنڈیشن بارے روزانہ اطلاع کرنے کا پابند ہوگا، جبکہ مریض کے لیے ٹیسٹنگ پروٹوکول کی پابندی بھی لازم ہوگی۔ ہوم آئسولیشن کا دورانیہ 10 دن ہوگا اور اسے ختم کرنے کے لیے مریض کے 2 نیگیٹو کورونا ٹیسٹ ضروری ہوں گے۔ ہوم آئسولیشن ختم ہونے اور دوسرا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر مزید 5 دن کے بعد نیا ٹیسٹ کرایا جائے گا، جبکہ کورونا ٹیسٹ کی سہولت میسر نہ ہونے پر مریض کو علامات ختم ہونے کے باوجود مزید 2 ہفتے الگ رہنا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ کورونا وائرس پنجاب اسمبلی بھی پہنچ گیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری لیب کے رزلٹ میں کورونا پازیٹیو، پرائیویٹ میں رزلٹ نیگیٹو۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کورونا ٹیسٹ کروا کر کشمکش کا شکار ہو گئے۔ سردار دوست محمد مزاری نے خود کو سیلف آئسولیٹ کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری چند روز قبل دبئی کے نجی دورے سے لاہور واپس پہنچے اور خود کو سیلف آئسولیٹ کر لیا۔ اس دوران انہوں نے نجی لیبارٹری سے کورونا ٹیسٹ کرایا تو رزلٹ نیگیٹو آیا، جس کے بعد انہوں نے پنجاب اسمبلی میں خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کی، لیکن اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے ساتھ سرکاری سطح پر کورونا ٹیسٹ کرایا تو رپورٹ مثبت آ گئی، جس پر ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے خود کو ایک بار پھر سیلف آئسولیٹ کر لیا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے 3 سے زائد ملازمین کے کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آئے، جن میں ایک پنجاب پولیس کے DSP بھی شامل ہیں، جنہیں مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ علی اکبر، سٹی 42۔ کورونا کے وار لگاتار۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 438 نئے کیسز، تعداد 10,471 ہو چکی ہے۔ لاہور میں 228 مزید کیسز رپورٹ ہونے کے بعد تعداد 4,084 ہو چکی ہے۔ لاہور میں وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 76 ہے۔ لاہور میں 228 مزید کیس رپورٹ ہونے کے بعد تعداد 4,084 ہو گئی۔ اب تک صوبے بھر میں 191 افراد، جبکہ لاہور میں وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 76 ہو گئی۔ 41 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ 4,131 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک کل 1,17,206 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ لاہور میں سب سے زیادہ مریض ایکسپو سینٹر میں تعداد 467، نیو اسپتال میں 389، سروسز میں 17، PKLI میں 96، 22 جناح، 25 جنرل، 12 مزنگ، 4 چلڈرن اور 5 مریض سوشل سیکیورٹی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہر میں لاک ڈاؤن جاری ہے۔ شہر میں جاری لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ چھٹی کے روز شہریوں کی کم تعداد کی سڑکوں پر آمد و رفت برقرار رہی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے شہر میں جاری لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ چھٹی کے روز شہریوں کی بہت کم تعداد اہم شاہراہوں پر سفر کرتی دکھائی دی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کی وجہ سے مختلف مقامات پر ناکہ بندی کی گئی ہے، جہاں پر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ڈیٹا بھی مرتب کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ٹریفک وارڈنز ڈبل سواری کرنے والوں کے چالان بھی کر رہے ہیں۔ عام آدمی کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی کی۔ وزیراعلیٰ پنجاب کسی کو بھی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیراعلیٰ کا لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم۔
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं, सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ने तफसीली मुशावरत के बाद नए इकदामात उठाए हैं। उम्मीद है ताजिर बरादरी और अवाम कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करेंगे। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि जो कारोबारी इदारे और इंडस्ट्रियल यूनिट्स SOPs पर अमल नहीं करेंगे, उनकी इजाजत मनसूख कर दी जाएगी। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात बोर्ड इम्तिहानात में बच्चों की प्रमोशन और पेपर्स की मार्किंग पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल पॉलिसी का ऐलान न होने पर तुलबा में बेचैनी बढ़ने लगी है। वज़ीर तालीम पंजाब ने मुतासरा तुलबा को आइंदा हफ्ते तक इंतजार की तलकीन की है। सूबाई वज़ीर तालीम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम दिया है कि बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से तफसीलात आइंदा हफ्ते सामने आएंगी। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना था कि सप्लीमेंट्री इम्तिहान, बच्चों की प्रमोशन और पेपर्स की मार्किंग के हवाले से वाज़े फैसले करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार थोड़ा इंतज़ार करें, हम इम्तिहानात के हवाले से कोई बेहतर हल लेकर आएंगे। बच्चों को कतई तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब का मुल्क में सेहत की सहूलियात में कमी का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराना नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुस्ताक है। सूबाई वज़ीर ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब ने गोएबल्स शां किया और मुकाबले की सियासत को जिंदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं। मैं ये समझता हूँ कि मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह ने गोएबल्स की, मैकावली की और चाणक्य की सियासत को ज़िंदा किया है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। हकीकत तो ये है कि कोरोना वायरस की वबा ने आले शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान के 40 साल इक़्तिदार और ख़ुसूसन पिछले 10 साल जो लगातार ये नाम नहाद खादमे आला जो बरसे इक़्तिदार रहे हैं, इनकी गुड गवर्नेंस की कली खोल के रख दी है, उसको नंगा करके रख दिया है। आज पंजाब के अंदर कोरोना वायरस से पहले सिर्फ 200 वेंटिलेटर थे। पंजाब के अंदर कोरोना से सेहतयाब अफराद अपना प्लाज्मा अतिया करें और दीगर मरीजों की जान बचाएं। सिटी 42 के कारकुन सैयद असद नदीम के अतिया किए गए प्लाज्मा ने काम दिखाना शुरू कर दिया है। प्लाज्मा मरीज को लगने से तबीयत में बेहतरी आने लगी है। पंजाब हुकूमत VCUHS डॉक्टर जावेद अकरम ने सिटी 42 की काविश को सराहा है। हुकूमत की कोरोना से सेहतयाब दीगर मरीजों से भी प्लाज्मा अतिया करने की अपील। कोरोना से सेहतयाब होने वाले सिटी न्यूज नेटवर्क के प्रोड्यूसर सैयद असद नदीम के अतिया करदा प्लाज्मा ने काम दिखाना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक 65 साला डॉक्टर की हालत काफी तशवीशनाक थी। प्लाज्मा लगने के बाद हालत बेहतर होने लगी है। सिटी 42 के करने से उनका अपना ही कारकुन जो मुल्तान में बेस्ड है, सैयद असद नदीम, वो ऑल द वे मुल्तान से आया हमारी अपील पे। उसने मेरे से बात की और वो सीधा 3-3.5 घंटे में आया और प्लाज्मा दे के वापस मुल्तान चला गया। ये उसकी बहुत बड़ी काविश थी, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने उसकी ये जो सेक्रीफाइस है और जो उसका सफ़र करना है कबूल किया। और डॉक्टर साहब दूब सेहत बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, बल्कि इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अब उनका सांस बगैर ऑक्सीजन के ठीक है, बिल्कुल हीमोडायनामिकली स्टेबल हैं। और सिर्फ उनका ये इंतजार है कि वो कोरोना नेगेटिव कब होते हैं, तो इंशाल्लाह वो मेरा ख्याल है 1 आधे दिन में वो भी हो जाएगा और वो घर जा सकेंगे हॉस्पिटल से। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सबसे पहले सिटी 42 के कारकुन असद नदीम कुरैशी ने अपना प्लाज्मा अतिया किया। कोरोना में मुब्तला मरीजों के लिए अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे बहन भाई इस चीज से रिकवर किए हैं वो इस चीज से भरपूर फायदा हासिल करें। रमजान में जहाँ वैसे ही नेकियां कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती हैं और उनको बिल्कुल ये बेहतर होगा कि वो असद से बात कर ले, वो खुद बता देगा उसको कितनी तकलीफ हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये तो आप खुद उसको असद को लें और असद को मुबारक हो इस चीज की, और डॉक्टर अकरम कुरैशी साहब को मुबारक हो कि जो अब बिल्कुल रूबसेहत और कह रहे हैं कि अभी मुझे घर जाने दे। सिटी न्यूज नेटवर्क के कोरोना से सेहतयाब होने वाले दीगर मुलाजमीन भी प्लाज्मा अतिया करने के लिए तैयार हैं। सिटी 42 के एंकर मोहम्मद एहसन ने डॉक्टर जावेद अकरम को अपना प्लाज्मा अतिया करने के हवाले से आगाह कर दिया। डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी बताता चलूं कि मैं भी कोरोना से सेहतयाब चूंकि हुआ हूं, तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी और मैं भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहूंगा। जज्बा है ना सर, और आप फिर मैं वही कहूंगा कि आप लोग हमारे रोल मॉडल हैं और हमने एक यही किया कि पूरा अपने डोनर बैंक कर लिया, क्योंकि ये प्लाज्मा ऐसी चीज है हम स्टोर नहीं करना चाहते।
पंजाब में पहला प्लाज्मा अतिया करने वाले सैयद असद नदीम को पंजाब हुकूमत ने भी खिराजे तहसीन पेश किया है। पंजाब हुकूमत ने सिटी 42 के प्रोड्यूसर सैयद असद नदीम को बुलाकर शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर जावेद अकरम को खिराजे तहसीन पेश किया और दीगर सेहतयाब अफराद से भी प्लाज्मा अतिया करने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन में नरमी के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि चंद रोज में कोरोना मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। हुकूमत सब कुछ आवाम पर मत छोड़े। प्रेस क्लब में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर मोहम्मद अफजल मियाँ का कहना था कि कोरोना वायरस से मुतालिक मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस में 3 गुना और अमवात में 5 गुना इजाफा हुआ। इससे हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया भर में जहाँ केसेस की तादाद बढ़ती गई, वहाँ लॉकडाउन को बरकरार रखा गया है। हमारी जो इस वक्त निगहदाश्त, इंतहाई निगहदाश्त की कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है डे बाई डे, और जो तादाद मरीज़ों की है उसमें बेतहाशा इजाफा हो रहा है, और हमें सोचना चाहिए कि हम इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ निज़ामी का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि लॉकडाउन को उस वक्त तक जारी रखना चाहिए जब तक कोरोना केसेस की तादाद कम नहीं होती। ये जो हुकूमत ने फैसला किया है, हम तमाम तंजीमें इसको मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि ये फैसला ना तो आज के दिन के मुताबिक है, ना ये साइंटिफिक है, ना ये इंसानी है, ना ये किसी तरह से भी इसे हम कानूनी कह सकते हैं, क्योंकि इससे अवामुन नास का कतई तौर पे कोई भला होने को नहीं है। इस मौका पर सदर पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस डॉक्टर तारिक मियाँ, नायब सदर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी प्रोफेसर मोहम्मद हारून यूसुफ और सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीबी मौजूद थे। कैमरामैन वसीम निसार के साथ वकार घुमन, लाहौर। शहर में लॉकडाउन बरकरार है। गारमेंट्स इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशानी में मुब्तला हैं। दुकानदारों ने आर्जी स्टॉल लगाकर काम चलाना शुरू कर दिया है। कोरोना वबा के पेश नजर लॉकडाउन को 1.5 माह से ज्यादा का अरसा मुकम्मल होने वाला है। ऐसी सूरत हाल में अनारकली बाजार में दुकानदारों ने गवर्नमेंट्स के आर्जी स्टॉल्स कायम कर रखे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। ईद की आमद के पेश नजर आर्जी दुकानों पर स्टॉल लगाकर गुजारा कर रहे हैं, मगर कोई फायदा नहीं। कभी पुलिस वाले तंग करते हैं तो कभी इंतजामिया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने रिलीफ के दावे किए, मगर गरीब आवाम तक इसके समरात नहीं पहुँचे। लॉकडाउन की वजह से तो कारोबार बिल्कुल ही तबाह हो गया। थोड़ा बहुत अगर तबाह होना तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई परसेंटेज दी जा सकती है, 5%, 10%। मैं समझता हूँ कि 100% कारोबार तबाह हुआ है, और ये जो आर्जी तौर पे लगा रहे हैं ये भी एक ज़रिया हमारा इस तरह ही है कि हमारे घर की दाल रोटी चल सके। पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं उठा लें, बंदे भी पकड़ के ले जाते हैं। देखें हम क्या करें। ये एक माल है, ये मिसाल है मैं 10,000 रुपये का लेकर आऊँ, उसमें मैं 500 रुपये बढ़ लूँ, सिर्फ घर का ना किचन चल रहा है। समझ रहे अगर कारोबार की बात करें, हुकूमत ने कोई सहूलत नहीं दी। खरीदारों का कहना था कि दुकानें तो सब बंद हैं। ईद की वजह से आर्जी दुकानों का रुख किया है। खरीदारों के मुताबिक गवर्नमेंट्स के नर्ख में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया। मुश्किल तो बहुत है, हमें भी शॉपिंग के लिए या कुछ खरीदने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। रेट का अगर देखा जाए तो रेट का मैंने एक आध चीज़ परचेज़ की है, रेट का इतना फ़र्क नहीं है। अब वो रेट ज़्यादा लगा तो रहे हैं, लेकिन अब उनके से बहस तो कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो भी अपनी बेरोज़गारी की क्योंकि कमा रहे हैं वो भी, तो 50-100 ज़्यादा वो लगा रहे हैं रेट। बाजार में मौजूद स्टॉल होल्डर्स और दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत को फौरी तौर पर गरीब आवाम के लिए बेहतर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा, साउथ बर्ड, सिटी 42। तामीराती शोबे और मुतल्लिका इंडस्ट्री को काम का परवाना तो मिल गया है, मगर दिहाड़ीदार मजदूरों को रोजगार न मिल सका। मजदूरों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होने लगा है। कोरोना वायरस लॉकडाउन ने जहां तमाम शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया, वहीं दिहाड़ीदार मजदूरों से भी रोजगार छिन गया। मजदूरों को रोजगार मिला, ना ही एहसास किफालत प्रोग्राम से माली इमदाद मिली। बेयारो मददगार दिहाड़ीदार मजदूरों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मेहनत कशों का कहना था कि सरकारी नंबर पर SMS तो किया, लेकिन ताहाल कोई जवाब नहीं आया। नौबत फाकों तक जा पहुंची है। ये कहते हैं जी 12-12 हज़ार रुपये आपको मिलेगा, वो 12 हज़ार रुपया उन लोगों को मिला है जो उनके अपने जाती काउंसलरों या MNA के। कब से यहाँ बैठे हैं और रोजगार नहीं है? तकरीबन 1.5 महीना हो गया। ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਫਤੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਵਾ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ हैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਾਧੀ ਅਜੇ तक रोटी नहीं खाती। शहर के चौक चौराहों पर दिहाड़ी की गर्ज से मौजूद मजदूर लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुतासर हुए और सरकार की तवज्जो के मुंतजर हैं। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। रमजान अल मुबारक का निस्फ हिस्सा गुजरते ही सब्जियों के निर्खों में कमी का रुझान देखने में आया है, मगर आम बाजारों में डीसी रेट पर फरोख्त मुमकिन न हो सकी। अवाम के शिकवे और शिकायतें बरकरार हैं। रमजान अल मुबारक के दूसरे अशरे के निस्फ में सब्जियों के नरखों में कमी देखने में आ रही है, मगर आम बाजारों में इसके समरात ताहाल ना पहुंच सके। आलू का मंडी रेट 50 रुपए, जबकि आम बाजार में आलू 60 से 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। 35 वाला प्याज आम बाजार में 45 से 50 रुपए, टमाटर का मंडी रेट 25, बाजार में 30 से 35 तक फरोख्त हो रहा है। 85 रुपए वाले मटर 120, 25 वाली शिमला मिर्च 40, 22 वाली पालक 30, गाजर 40 और 300 रुपए किलो वाला अदरक 340 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। 135 रुपए वाला लहसुन आम बाजार में 240 रुपए किलो में दस्तयाब है। शहरियों ने शिकवा किया है कि मौजूदा लॉकडाउन ने कुव्वत खरीदारी खत्म कर दी है। हुकूमत सब्जियों के डीसी रेट पर ही अमल दरामद करा ले तो बड़ी बात है। इस रेट ते बहुत मुश्किल है, गरीब ਲਈ बहुत औखा काम है। बाकी कोरोना ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹੀ। महंगाई है सारा, क्योंकि बजट साथ नहीं दे रहा, तो बहुत मुश्किल असी थोड़ी जिथे 2 किलो चीज़ लैनी है उत्थे किलो लै रहे। शहरियों का मजीद कहना था कि जिले इंतजामिया को सब्जी मंडी में अशिया के नर्ख पर कंट्रोल करना जरूरी है, जिसके जरिए महंगाई के जिन पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा साउथ बट, सिटी 42। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में मनपसंद अफराद की भर्तियां, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट की आसामियों पर रेडियोलॉजिस्ट मांग लिए गए हैं। 2016 में शोबा न्यूरो रेडियोलॉजी में प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रजिस्ट्रार की भर्ती की मंजूरी दी गई। 2017 से 20 में शाये होने वाले इश्तिहार में 4 आसामियों पर न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट की जगह रेडियोलॉजिस्ट मांगे गए हैं, जो सर्विस कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में रेडियोलॉजिस्ट की कोई पोस्ट ही मौजूद नहीं है। शोबा न्यूरो रेडियोलॉजी को पाकिस्तान के पहले फाली सेंटर होने का भी एजाज़ हासिल है, जो 2014 में कायम हुआ। न्यूरो रेडियोलॉजी के सरबराह की जानिब से सूबाई वज़ीर सेहत को खत भी लिख दिया गया है। गैर कानूनी भर्तियों से फाली सेंटर बेहतर इलाज मुआवजा फराहम करने से कासिर हो सकता है। सीडीओ सैयद हमाद आबिद ने सीनियर ट्रैफिक वार्डन सलमान को जाली दस्तावेज पर तरक्की हासिल करने की पादाश में मुअत्तल कर दिया है। सीडीओ ने करप्शन इल्जाम सच साबित होने पर वार्डन नदीम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। नौकरी से बर्खास्त होने वाले वार्डन तनवीर पर चालानों की मद में करप्शन का इल्जाम था। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद आबिद ने एक ही सेक्टर में तवील अरसे से तैनात 240 ट्रैफिक वार्डन्स के भी तबादले कर दिए हैं। FBI ने कस्टम्स, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और एक्स कैडर के ग्रेड 18 के अफसरान से गुज़श्ता 5 साल के एहसासाजात की तफसीलात तलब कर ली हैं। FBI ने कस्टम्स, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और एक्स कैडर के ग्रेड 18 के अफसरान से गुज़श्ता 5 साल के एहसासाजात की तफसील मांगी है। इस हवाले से सेकंड सेक्रेटरी मकबूल इलाही ने सर्कुलर जारी कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एहसासों की तफसीलात जमा करवाने के लिए 15 मई की डेडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में कल 11 मई से 15 मई तक 3 मुख्तलिफ डिवीजन बेंचेस केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होने के बाद पहली मरतबा लाहौर रजिस्ट्री में केसेस सुनेंगे। जजेस रोस्टर के मुताबिक डिवीजन बेंच नंबर 1 में जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी मुकदमात की समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 2 जस्टिस मंजूर अहमद मालिक और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल होगा। डिवीजन बेंच नंबर 3 में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की पेशी लिस्ट जारी करके अफ्रीकन को नोटिस जारी किए गए हैं। दौरान समाअत मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासला बरकरार रखकर बैठने की हिदायत की गई हैं। सफदरदार के इलाके में एक और नमाजी की मोटरसाइकिल चोरी। नामालूम चोर नमाजी असगर की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। शहर में मसाजिद के बाहर से नमाजियों की मोटरसाइकिलें चोरी होने का सिलसिला जारी है। सब्जाजार में मस्जिद से एक और नमाजी की मोटरसाइकिल चोरी हुई। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी मस्जिद आयशा सिद्दीकी पी ब्लॉक में नमाज के लिए आया था। नामालूम चोर पहले रैकी करता है और बाद में मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाता है। मुतासरा शहरी ने
पुलिस को इंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी है। इससे कबल मुतअद्दिद बार मस्जिद के बाहर से नमाजियों की मोटरसाइकिल्स चोरी हो चुकी हैं। लेस्को दाता दरबार बॉर्डर डिवीजन की टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मुतअद्दिद अफराद को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुजाहिद परवेज चट्टा की हिदायत पर एक्सीएन दाता दरबार फैसल अशरफ की सरबराही में मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ऑपरेशन शुरू होते ही बिजली चोरों ने अपनी मदद आप के तहत डायरेक्ट सप्लाई उतार कर बिजली चोरी छुपाने की कोशिश की, जिसको टीमों ने वीडियो बनाकर महफूज कर लिया। लेस्को हुक्काम के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं, जबकि बिलों में डिटेक्शन चार्ज की जाएगी। शहर में महंगाई का तूफान बरपा है। 10 रोज में मुर्गी का गोश्त 50 रुपए तक महंगा हो गया है। मगर गिरा फरोशी फिर भी अरूज पर। रोज बर रोज बढ़ती महंगाई और लॉकडाउन ने शहरियों के औसान खता कर दिए। सरकारी निखनामे में 1 मई को 212 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त 10 रोज के दौरान 265 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। खरीदार परेशान दिखाई देते, कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई मगर महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। सारी जिंदगी है पाकिस्तान की, तुम दसो कोई सिंसीयर आदमी आया हो, कोई सिंसीयर आदमी आया हो। महंगाई तो जुर्माने और महंगाई जुर्माने और जुर्माने जो पाते थे फिर महंगाई दे पा देंगे। 2 महीने के अंदर तकरीबन 37 रुपीज़ 35 रुपीज़ कम हुआ है और इनको चाहिए कि ये प्राइस हिसाब से ये कम करें, लेकिन ये लोग काम नहीं कर रहे। ये इन लोगों का एक जो है ना एक ग्रुप है, एक बना हुआ है जो लोगों को ये लूट रहे हैं, एक तो कोरोना के हवाले से और ऊपर रमज़ान के हवाले से। 10 रोज में मुर्गी के गोश्त की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर 5 रुपए इजाफा देखने में आया, जिस पर शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार किया। कहते हैं कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद और कुव्वत खरीद रोज ब रोज कम हो रही है, जबकि हुकूमत महंगाई पर काबू न पा सकी। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ फारहान यामीन, सिटी 42। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सदर इरफान इकबाल शेख की ज़ेर सदारत ताजिर बरादरी का हंगामी इजलास हुआ। कारोबार खुलने पर ताजिरों का खुशी का इजहार। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए पुरस्म हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किदा इजलास शहर भर की मार्केटों, सनती और तजारती एसोसिएशन के 100 से जायद ओहदेदारों और ताजिर नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए इरफान इकबाल शेख ने कहा कि कोरोना कब खत्म होगा कुछ मालूम नहीं, हमें मीशत और कोरोना को साथ लेकर चलना है। हम कब तक दुकानें बंद रखते, हुकूमत ने हमारी बात मानी जिस पर हम मशकूर हैं। हमें हुकूमती SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करना है, क्योंकि कोरोना बढ़ा तो फिर कर्फ्यू लग सकता है। अगर हम कुएं से बचते हैं तो फिर हम खाई में गिरते हैं, और खाई में गिरते हैं तो हम कुएं में जाते हैं। तो हमने दोनों को साथ साथ लेके चलना है। इंशाल्लाह मेरी ताजर कम्युनिटी, मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेगी और एक अच्छे गवर्नमेंट को बताएगी कि हम वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद ने उम्मीद जाहिर की ताजिर बरादरी एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे और समाजी फासले को तरजीह देंगे। अगर ताजिर नाकाम हुए तो फिर दोबारा कारोबार बंद करना पड़ेगा। हमारी बड़ी क्लियर जो सेक्शंस है पुलिस स्टेशंस की, उन पुलिस स्टेशंस के अंदर जो लोग होंगे उनके नाम, मोबाइल नंबर्स के साथ हम आपको कन्वे करेंगे। आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके नाम और नंबर है वो हमें दे दें। अगर आपकी तरफ से आपकी टीम एक्टिव नहीं होगी, फील्ड में अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर ये सारा कुछ हमारे कंधों पे आन पड़ेगा, फिर आपकी तरफ से शिकायतों के अंबार लगेंगे। अगर आप ऑन ग्राउंड हमारे साथ होंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर हमारी 80% चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। इजलास में सीनियर नायब सदर अली एहसान असगर, नायब सदर मियां जाहिद जावेद, चौधरी ताहिर मंजूर, खादिम हुसैन, खालिद परवेज, शाहिद नजीर, हाजी हनीफ, हाजी अतीक, हाजी इश्तियाक, खालिद गुज्जर, हाजी अफजल, मलक जिशान सोहेल, खुरम लोधी, अजहर शाह, सैयद अफजाल शाह, हाजी मोहम्मद असगर ने शिरकत की। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के हमरा फारहान यामीन, सिटी 42। रुकने सूबाई असम्बली नीलम हयात का बंद रोड पर एहसास राशन प्रोग्राम कैंप का दौरा। वकार हुसैन इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम राशन के लिए लोगों की रजिस्ट्रेशन की गई। इस मौके पर सैयद मुर्तदा अली गैलानी और चौधरी मोहम्मद जुबैर समेत दीगर भी मौजूद थे। कैंप पर राशन के लिए रजिस्ट्रेशन की गई। नीलम हयात का कहना था कि आवाम की खिदमत हमारा मिशन है। इमरान खान का विजन है कि गरीब को सतह गुर्बत से निकालना है। नीलम हयात ने बताया कि अब तक अरबों रुपए रिलीफ के कामों में लगा चुके हैं। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का हल्के का दौरा। मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का जायजा लिया गया। लीगी अरकान असम्बली का कहना है कि शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुश्किल हालात में खिदमत खल्क का अमल जारी है।
रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने PP 153 अपने हल्के का दौरा करते हुए इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। अली परवेज मलिक का कहना था कि हल्के में मुस्तहिक अफराद की भरपूर मदद कर रहे हैं। अल-ज़िक्रा फाउंडेशन की जानिब से जामे मस्जिद और इमाम बारगाह अल हुसैन इचरा लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। राशन जामे मस्जिद अल हुसैन के खतीब और अल-ज़िक्रा फाउंडेशन के सरबराह लामा हसन रजा की निगरानी में तकसीम किया जा रहा है। उस्मान इलियास हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उस्मान, इंतहाई बेहतरीन काविश है। मैं तो इचरे के इलाके जामे मस्जिद इमाम बारगाह अल हुसैन में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर रमज़ानुल मुबारक में शुरू से जो है बिला रंग तफरीक जो है राशन तकसीम किया जाता है और जो मुस्तहिकीन हैं उनकी मदद की जाती है। अल-ज़िक्रा फाउंडेशन की जानिब से जो है ये राशन तकसीम किया जाता है और उसके जो बानी हैं अलामा हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अलामा साहब, बताइएगा कि जो राशन तकसीम किया जा रहा है इस हवाले से क्या कहेंगे? खुशी होती है अपने मोमिन बिरादरान की खिदमत करना, मोमिन मुसलमान की बिला रंग नस्ल और मज़हब की हम ये खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह का हुक्म है, इस अल्लाह के हुक्म को हम आम करना चाहते हैं। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इस पैगाम को आम करते हैं और आम करेंगे इंशाअल्लाह। और सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने मुसलमानों को इस माहौल में भी और आइंदा भी तन्हा ना कभी छोड़ें और इत्तेहाद का दामन हाथ से ना जाने दें। परवरदिगार आप पर रहमतें और बरकतें नाजिल करेगा इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन को अपनी ज़ात से फैज़ पहुँचाया जाए। एक पैगाम ये है कि अगर आप किसी को कोई फ़ायदा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना दें। अरे बिल्कुल, किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना पहुँचाए। अच्छा अलामा साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कब से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। मदर्स डे पर हम बात करेंगे थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों की माओ के मुतल्लिक, जो अपने बच्चों की ज़िंदगी की उल्टी गिनती को सीधा करने में मसरूफ़ है। माओं का आलमी दिन है और आज के दिन कुछ उन माओं की बात करते हैं जो उम्र भर अपने बच्चों की एक मोज़ी और मौरूसी बीमारी को लिए फिरती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, अपनी रातों की नींदें कुर्बान करती हैं, उनके लिए जगह जगह जाती हैं, खून की भीख मांगती हैं। उन माओं से आज मिलाने के लिए मैं पहुंची हूं एक ऐसे सेंटर में जहां पर थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं, उनको खून लग रहा है, उनकी माएँ उनके साथ मौजूद हैं। सुंदस फाउंडेशन के इस मरकज़ में दाखिल होते ही आपको हर कमरे में कसीर तादाद में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला 9 उम्र बच्चे दिखाई देंगे। इन बच्चों की माएँ अपना सुख चैन छोड़कर सिर्फ अपने बच्चे की ज़िंदगी की टेढ़ी लकीर को सीधा करने पर मजबूर हैं। 6 माह की उम्र से इसको ब्लड लग रहा है और अब ये 14 साल का हो गया है और जब 6 माह का था तब से इसको इधर से ब्लड लगवा रही हूँ मैं। हर रोज़ इस इदारे में सैकड़ों बच्चे अपनी माओं के साथ खून लगवाने आते हैं। जिंदगी और मौत के दरमियान झूलते इनके बच्चों की माओं को किसी पल चैन नहीं। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। रिहाना कोसर का शुमार भी ऐसी ही माओं में होता है। रिहाना गुज़िश्ता 8 साल से अपनी बेटी को खून लगवा रही हैं। इस बार लॉकडाउन में उनकी बेटी को 1 माह तक खून नहीं मिल पाया, जिसके बायस उनकी बेटी की हालत भी खराब हो गई। यही डर होता है कि डोनर ना अगर मिला तो क्या होगा। तो एक दफ़ा मुझे पूरा मंथ हो गया था, इसका डोनर नहीं मिला था, तो अरे फिर डॉक्टर साहब ने ना अरेंज करवा के दिया था। तो फिर इनको लगा था इनकी हालत कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी उस वक्त, तो फिर उन्होंने मुझे करवा के दिया था। फिर मैंने 2 दफ़ा लगवाया था, फिर बच्ची की तबीयत संभली थी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।